నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి సలాం హైదరాబాద్. సుమారు 100 ఏళ్ల క్రితం నిజాం వంశీకుల ఆభరణాలుగా ఉన్న ముత్యాలు ఇప్పటికీ దేశ విదేశాల మగువల మనసులు దోచేస్తున్నాయి. బంగారం వెండి లాంటి ఆభరణాలు ఎన్ని రకాలుగా తయారు చేసినా ముత్యాల ఆభరణాల స్టైల్ వేరంటున్నారు పర్ల్స్ ప్రేమికులు. యాంత్రికంగా కాకుండా సముద్ర గర్భాల నుంచి బయటకు వచ్చే ముడి సరుకు రూపంలో ఉండే ముత్యాలు ఆభరణాల రూపం దాల్చాలి అంటే నెలల వ్యవధి పడుతుంది. తయారీ వెనుక ఉన్న శ్రమ, వాటి తయారీ కోసం శ్రమిస్తోన్న ముత్యాల కార్మికుల కోసం చార్మినార్ చెంతన కొన్ని బస్తీలు ఉన్నాయంటే వారి అవసరం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముత్యాలు ముస్తాబై హైదరాబాద్లోనే ముత్యాల ప్రత్యేక మార్కెట్ చార్మినార్, గుల్జార్ హౌస్ వద్ద పదుల సంఖ్యలో షాపులున్నాయి. అంతటి పాపులారిటీ ఉన్న పర్ల్స్ మార్కెట్ గురించి మా ప్రతినిధి అబ్దుల్ ఖదీర్ వివరాలను అందజేస్తారు. ఖదీర్, ఓవర్ టు యు. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాక్షి డిజిటల్ ఎక్స్క్లూజివ్. హైదరాబాద్ పేరు అనగానే చరిత్రలకు నిలయం. ఇక్కడ చారిత్రాత్మక కట్టడాలతో పాటు ఎన్నో విషయాలు దాగి ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా హైదరాబాద్లో జ్యువెలరీ, పల్స్, ముత్యాలకు హైదరాబాద్ చాలా ఫేమస్. ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మార్కెట్గా హైదరాబాద్ని పరిగణించవచ్చు. హైదరాబాద్లో మనము ఇప్పుడు చార్మినార్ చెంతన ఉన్న ముత్యాల మార్కెట్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ ముత్యాల మార్కెట్లో ఫేమస్ షాప్ శర్మ పల్స్ యజమాని తరుణ్ శర్మతో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడి ఇక్కడ ముత్యాలు ఎందుకు ఫేమస్ ఉన్నాయి, అసలు ముత్యాల వ్యాపారం ఎలా సాగుతుంది అనే విషయాలు కనుక్కుందాం. సార్ నమస్కారం. నమస్కారం సార్, ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ అంటే ముత్యాలకు ఫేమస్. అందులో చార్మినార్ వద్ద మీది అతిపెద్ద షాప్ ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు ఇక్కడ కస్టమర్స్ ఎలా వస్తారో, అసలు మీ ఐడెంటిఫై ఇక్కడ ముత్యాలు దొరుకుతాయని కస్టమర్స్కు ఎలా తెలుస్తుంది? फर्स्ट हैदराबाद फेमस पर्ल्स के लिए है. पर्ल्स इसलिए है क्योंकि जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उनको पर्ल्स का बहुत शौक़ था और अपने अलग अलग उनके जो भी ज्वेलरी रहती थी उसमें सारों में पर्ल्स यूज़ करते थे. वो टाइम पे बसरा पर्ल बोल के बहुत फेमस पर्ल रहता था. तो उस पर्ल से उनकी सारी ज्वेलरी में आप देखोगे तो हर जगह पर्ल्स 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 लगे रहेंगे. कोई बड़े रहते, कोई छोटे रहते, ऐसे टाइप के. उनको बहुत शौक़ था पर्ल्स की ज्वेलरी में. और उनकी जितनी ज्वेलरी रहती थी पूरी ट्रेडिशनल ज्वेलरी रहती थी. उनको उस ज्वेलरी का बहुत शौक़ था. हर टाइप की ज्वेलरी थी उनका ने. तो उस दौर से पर्ल्स फेमस होते आए हैदराबाद में. और सारा काम फिनिशिंग का, क्वालिटी छाटना और उसमें अलग अलग कलर्स निकालना करके स्ट्रिंग्स बनाना, पूरी ज्वेलरी हैदराबाद में होती है. ఈ పల్స్ వ్యాపారం మీరు ఎంతకాలం నుంచి చేస్తున్నారు? అసలు దీనికి ఏమైనా చరిత్ర ఉందా మీకు సంబంధించి? Since 1948 we are doing this business. We are in this business. This is our 7th generation of jewelry business in pearls. And we are very famous and you'll get all types of pearls. यहाँ तक कि शेप वाला भी मिलेगा, बगर शेप वाला भी मिलेगा और कलर वाला भी मिलेगा आपको इसमें. और पूरा लाइफ टाइम गारंटी होता है पर्ल्स का. पर्ल कभी भी ख़राब नहीं होता है. ఈ పల్స్కు సంబంధించి అసలు కస్టమర్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? మీ దగ్గర దాకా ఎలా వస్తారు? आइडेंटिफिकेशन बोले तो उसको एक तो परफेक्ट शेप नहीं होता है उसमें. सब अलग अलग शेप के रहते हैं. कोई मोटा रहता है, कोई पतला रहता है. तो उसको हम लोग क्वालिटी साइज़ जो छाटते हैं ना, साइज़ छाट के उसको स्ट्रिंग में बनाते हैं. तो वो एक जैसा लगेगा आपको, लेकिन होता एक जैसा एक भी नहीं. మీ వద్ద ఇప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి? అంటే మ్యాక్సిమం చెప్పాలంటే ఎన్ని రకాలుగా పల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని రకాలుగా ముత్యాలు ఉంటాయి? कितने तरीके के, कितने अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ हैं? इसमें ऐसा कोई नहीं है. हर माला आपको अलग वैरायटी का मिलेगा. जो सांचे मोतियाँ होते हैं ना, हैदराबाद के जो फेमस जो सांचे मोती बोलते हैं ना, उसमें एक वैरायटी बोलने की नहीं रहती है. उसमें बहुत वैरायटी आती है. अपन आज तक हम लोग खुद नहीं गिन पाए कि इतनी वैरायटी होती है, क्योंकि ये जो खारे पानी के जो समुंदर में से जो निकलते हैं वो मोती होते हैं. तो उसको अपन शेप दे नहीं सकते. मोती को आप याद रखो, अपन कभी भी शेप नहीं दे सकते. जो रियल मोती होता है उसको अपन शेप नहीं दे सकते. और उसको चेक करने का तरीका एक सिंपल तरीका है. ब्लेड से उसके ऊपर घस के देखना. घसेंगे तो आप सेम शाइनिंग अंदर तक रहेगी उसमें. घसने के बाद में उसको वापस रब करें तो वही शाइन में मिल जाता. आर्टिफिशियल जो रहता वो उसका जो शाइनिंग चला जाएगा. एक बार जो कोटिंग करा हुआ रहता वो निकल गया तो हो गया, वो ख़त्म.
ये कितने कस्टमर्स आते हैं साहब, कहाँ कहाँ से कस्टमर्स आपके पास पहुँचते हैं? कस्टमर तो ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। हैदराबाद में पर्ल्स फेमस है और चार मीनार देखने के लिए आते हैं और पर्ल्स लेके जाते हैं गिफ्टिंग पर्पस के लिए, क्योंकि इसकी रेंज बहुत अफोर्डेबल है, ज्वेलरी है। इसमें आपको स्टार्टिंग 200 रुपये का भी मिल जाएगा, 20,000 का भी मिल जाएगा, 2 लाख रुपए का भी मिल जाएगा। सब अपने अपने बजट से गिफ्ट करने के लिए हर रेंज में मिल जाता है आपको। तो आजकल सुनते हैं इसमें नकली भी आए हैं, फेक पल्स भी आए हैं, फिर इससे कुछ आप लोगों को कुछ फ़र्क पड़ता है कि आपके बिजनेस पे हो या तो कस्टमर्स के लिए? हाँ, थोड़ा कस्टमर को समझाना पड़ता है कि फेक ऐसा होता है और रियल ऐसा होता है। उसको अलग अलग तरीके से, मतलब टेस्टिंग मैंने जैसे बताया ना कि टेस्टिंग करते हैं, ब्लेड से स्क्रैच करने पर पता लग जाएगा इजीली कि, तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो जाता है। उनके साथ में सर्टिफिकेट भी आता है, पर्ल्स के साथ में देते हैं हम लोग, हमारा ओन सर्टिफिकेट रहता है पूरा, वो दिया जाता है कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन के लिए। एक रॉ पल्स से ऐसा खूबसूरत पल्स बनने के लिए कितना टाइम लगता है सर, कितनी मेहनत लगती है? कम से कम सर एक रॉ पर्ल से एक प्रॉपर नेकलेस बनने के लिए कम से कम 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स का टाइम लगता है। जो जब शेल में से निकलता है वो तो खारा खारा रहता है, वो उसको पूरा साफ़ करना, हाइड्रोजन वाटर में डालना, फिर उसको पहनने के लायक किया जाता है। तो ये रॉ पल्स को साफ करके इसको जो आपको वापस मार्केट में लाने तक जो टाइम लगता है, ये प्रोसेस में कितने लोग काम करते हैं सर? आपके पास कितने लोग काम करते हैं? कम से कम 150 लोग काम करना पड़ता है सर, क्योंकि एक पर्ल बोलने के नहीं निकलता ना। जितना शेल में जगह रहता है, जो सीपी होती है मोती की, जिसमें से मोती निकलता है, उसमें क्या है, हर जगह एक मोती से काफ़ी सारे पर्ल्स हो जाते हैं उसमें। तो उससे क्या करना पड़ता है, उसको लेके फिर अलग अलग साइज़न छाटना, छन्नी मारना, उसको छन्नी से साइज़ डिफ्रेंशिएट करना और शेप डिफ्रेंशिएट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें। फिर उसके बाद में होता है कलर, क्योंकि हर मोती का एक कलर नहीं होता, एक समान कलर नहीं होता है। तो इसमें राउंड शेप भी आता है, ओवल शेप भी आता है, बटन शेप भी आता है, फिर इसमें अलग अलग तरीके के शेप्स भी आते हैं। ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं सर? मतलब आप लोग डायरेक्ट लाते हैं या कोई एजेंट्स के थ्रू आता है? ये जो रॉ मटेरियल होता है ना, हांगकांग से आता है सारा, फिर वहाँ से यहाँ पे प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस जो होता है, हैदराबाद की कारीगरी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसमें क्या है बोले तो, हैदराबाद में पूरा काम हो के फिर यहाँ से पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हांगकांग में भी आप जाके खरीदोगे तो वो हैदराबाद से ही बन के जाने का है। ये पल्स को कहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सर? हैदराबाद तो नवाबों का शहर है, ठीक है, हैदराबाद तो है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ के लोग पसंद करते हैं? हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, 99% वर्ल्ड के हर जगह से पर्ल इतना फेमस है कि हर जगह के लोग पसंद करते हैं उसको। और उसकी ब्यूटी जो है पर्ल की, जो पहनने की है, उसको आप डेली यूज़ में भी कर सकते हो और ऑफिस वेयर में भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत फेमस होता है, 99% वर्ल्ड के हर कस्टमर को पसंद आता है। ये फॉरेन कस्टमर्स जैसे यूके, यूएसए के लोग, हाँ, वो लोग का कैसा रिव्यू रहता है सर? वो लोग कैसा पसंद करते हैं? वो लोग राउंड शेप के पसंद करते हैं ज़्यादा तकरीबन। वो लोग जो फॉरेन कस्टमर्स होते हैं, वो लोग को राउंड और बिग साइज़ के पर्ल, लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, एलिजाबेथ जो थे, उनको राउंड पर्ल की माला पहनी हुई रहती थी। तो उस टाइप का वो लोग सिंपल वैसी ही में जाना चाहते हैं। ऑफिस वेयर में जो सिंपल राउंड शेप के जो पर्ल्स होते हैं वो पसंद करते हैं वो लोग। ये देखिए, ये हैदराबाद का निज़ामी सतलड़ा बोलते हैं इसको। ये बहुत फेमस है, हैदराबाद की हर ब्राइड पहनती है इसे। निज़ामी सतलड़ा है ये, जड़ावी सेट बोलते हैं इसको पूरा। ये है पटानी हार, हैदराबाद की जो फेमस ज्वेलरी होते हैं ना उसमें। इसमें भी सारा पूरा प्रेशियस यूज़ किया जाता है, रियल पर्ल्स, रियल रूबी, एमरल्स वगैरह। ये मोज़ोनाइट का हार है एमरल्स के साथ वाला, ये रूबीज़ में है। ये लॉन्ग नेकलेस हो गया, उसके साथ में शॉर्ट हो गया। और ये जो है पटानी हार है, ये मोज़ोनाइट और राइस पर्ल्स का पेंडेंट है। इस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है पर्ल की सारी ज्वेलरी को। ये एमरल्स में है, ये जड़ाऊ चोकर बोला जाता है इसको, रूबीज के साथ है ये। फिर इधर आते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेक्शन में। इसमें देखिए, ये रानी हार है, बहुत फेमस है वर्ल्ड में। ये रानी हार है, ये साइड में ब्रोच का पेंडेंट चलता है। पर्ल की ये सारी
प्योर पर्ल की ज्वेलरी होती है और इसको अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करके पेश किया जाता है कस्टमर्स को, ताकि उनको पसंद आना, हर कस्टमर को ये चीज़ पसंद आती है। फिर यहाँ आते अपन हैदराबादी ज्वेलरी में फेमस जो आसिफ जाई होता है, पठानी हार होता है, इन टाइप में आपको कुंदन का हो गया। ये देखिए कुंदन ज्वेलरी भी हैदराबाद में बहुत फेमस होती है। इसमें ये रूबी नेकलेस का चोकर हो गया, जड़ा होगा, ब्राइड्स के लिए होता है ये सारी ब्राइडल ज्वेलरी होती है। यहाँ आते अपन ये लॉन्ग ज्वेलरी होती है, सारी लॉन्ग पहना जाता है। इसके साथ में शॉर्ट भी पहना जाता है, हैदराबाद में 2-2, 3-3 सेट भी पहनते हैं। जैसा ये हो गया, देखिए ये पर्ल्स के साथ में अनशेप पर्ल्स है, कॉइन शेप का पर्ल है, उसके अंदर एंटिक सिल्वर का एंटिक पेंडेंट दिया गया है। ये है देखिए पोल्की का जो हैदराबाद का फेमस काम होता है, उसमें ये सारा एमरल्ड्स हैंग किया गया है। ये डायमंड टाइप के सेट्स होते हैं सारे, ये हैदराबादी ज्वेलरी बोला जाता है इनको। और ये जो है लॉन्ग एमरल्ड्स के साथ में रूबीज का है। చాలా మంది వస్తారు, ఎందుకంటే 90% టూరిస్ట్ వస్తారు, 10% లోకల్ వస్తారు. లోకల్ ఏంటంటే ఇట్లా నిజాం కలెక్షన్ చాలా లోకల్ తీసుకుంటారు. టూరిస్ట్ ఏంటంటే అలా పర్ల్స్, వైట్ పర్ల్స్, రౌండ్ పర్ల్స్, ఓల్డ్ షేపు, ఇలాంటి ప్లెయిన్ దండలు, ఇలాంటి విత్ లాకెట్, వితౌట్ లాకెట్, ప్లెయిన్ ఇట్లా సెట్స్ తీసుకుంటారు. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే టూరిస్ట్ అనేది ప్లెయిన్ ఐటమ్ చాలా తీసుకుంటారు, వితౌట్ షైనింగ్, వితౌట్ పర్ల్. ఇంకా రెగ్యులర్ యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి, చాలా రోజులు పాలిష్ ఉంటుంది కాబట్టి అది బాగా తీసుకుంటారు. మన హైదరాబాద్ జ్యువెలరీ ఏంటంటే ఇట్లా నిజాం కలెక్షన్, కొంచెం గోల్డ్ పాలిష్ ఎక్కువ ఉన్నది, షైనింగ్ ఎక్కువ, ఇలాంటి ఐటమ్స్ చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటారండి. మిగతా వచ్చేసి రూబీ ఎమరాల్డ్స్ అయితే అందరు తీసుకుంటారు కంపల్సరీ. ఇప్పుడు పల్స్ తెలియని వాళ్ళు కూడా వస్తారు అక్కడ, అంటే పల్స్ అంటే తెలియదు చూద్దాము అని ఆలోచన వస్తారు కదా, వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మేము పర్ల్స్ అంటే ఏంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏం వస్తుంది అని చెప్పేసి, ఎలా తయారైతే పర్ల్స్ అవన్నీ చూపిస్తాం కదా, గ్యారంటీ ఎట్లా ఉంటుంది, పర్ల్స్ ఎలా నేచురల్ ఎలా ఉంటుంది, మొత్తం టెస్టింగ్ చేసి చూపిస్తాం పర్ల్స్ మొత్తం ఎట్లా ఉంటాయని చెప్పేసి. వాళ్ళు సాటిస్ఫైడ్ అయ్యేదాకా చూపిస్తూ ఉంటాం, మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఎట్లా ఉందనేది. పర్ల్స్ వచ్చేసి మినిమం 45 ఇయర్స్ నుంచి కూడా వస్తారు రెగ్యులర్ కస్టమర్స్, విదేశాల నుంచి కూడా వస్తారు. వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు రాలేని పరిస్థితి ఉంటే కూడా మేము కొరియర్ కూడా చేస్తాం. ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమన్నా ఆప్షన్ అడిగితే వీడియో కాల్ చేసి కూడా కొరియర్ కూడా చేస్తాం మేము. అట్లా ఏముండదు, ఇయర్ మొత్తం ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలగలగా స్టేట్ నుంచి అలగల హాలిడేస్ వస్తాయి కాబట్టి అలా వస్తారు. వాళ్ళు తప్ప మదర్ మాత్రం 24-25 ఇయర్స్ ఉంటుంది కంపల్సరీ కస్టమర్. मेरा नाम अब्दुल जलील है। ये हमारे शॉप का नाम लकी मीनार पार्क है। हमारा शॉप चार मीनार के अपोजिट ही है। आपको यहाँ पूरा रियल पली मिलेगा और आपको रियल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस भी बता के देते, और ISO रजिस्टर है शॉप्स पूरे। ये चार मीनार एरिया में मार्केट है, पर्टिकुलर एक मार्केट है। डायरेक्ट शॉप मिलेगा आपको, डायरेक्ट प्राइजेस, रीजनेबल रेट में अच्छी चीज़ मिल जाती है। और ये पल्स निज़ाम के दौर से चल रहे हैं। अभी ये निज़ाम जब हैदराबाद में ट्रेडिंग स्टार्ट करे थे पल्स की, तो ये पल्स हैदराबाद में बहुत अच्छा मिलता हमारे पास। सेकेंड लेयर जैसा बोले आपको तो मेक करके दे देते, जैसा चाहिए तो मेक कर दे। और ये पल्स, और ये देखिए ये सब पल इसमें से निकलता है, ये ऑयस्टर बोलते हैं, रियल पल को ऑयस्टर रहता है, इसमें से निकलते जो कट ऑफ करते हैं। हैदराबाद में ये कारीगर है, ये बनाते हैं हैदराबाद में, ये भी हमारे कारीगर है रिजवान में बोलते हैं, उन्होंने बनाते हैं। और देखिए इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं। रियल में 3 कलर आते हैं, पिंक, पीच कलर और एक व्हाइट कलर। 3 कलर ओरिजिनल रहते हैं, बाकी जो कलर आते हैं ब्लैक वगैरह उसको थोड़ा डाई वगैरह करते हैं। आपको आर्टिफिशियल और रियल आपको बताते कैसा करते, टेस्ट वगैरह करके बताते। सेल कैसा है, पल्स का सेल कैसा है आपके पास? पल्स का सेल ज़्यादा यहाँ हमारे हैदराबाद के कस्टमर बहुत कम है। बाहर जो तमिल वगैरह, चेन्नई वगैरह और फॉरेनर्स वो ज़्यादा आते हैं इधर। यहाँ के लोग थोड़ा बहुत कम पहनते हैं। ये निज़ामी ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा चलते हैं, ट्रेडिशनल। प्राइजेस कैसा रहते हैं इसके? ये प्राइजेस देखिए सर थोड़ा हैवी रहते हैं, स्टार्टिंग में इसके वजन के हिसाब से वगैरह रहते हैं। आप मोती के लिए, अंगूठी बनाने के लिए कैसे लिए, आपके वजन के हिसाब से प्राइजेस से स्टार्टिंग 1500 रुपये से शुरुआत है। रियल पल ले रहे तो इयर रिंग्स वगैरह लिए 300-350 रुपये से स्टार्टिंग प्राइजेस से बस। जी थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। हमारी शॉप जो है ना 30 ईयर पुरानी शॉप है। और आपको मैं बताऊंगा रियल और आर्टिफिशियल की पहचान कैसा होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, ये वाला चाइना वाला मोती है। चाइना वाले हर चीज़ का कॉपी करे तो है, ये भी चाइना का मोती है।
आप ये देखेंगे ना पूरा एक जैसा रहेगा, मशीनमेंट रहेगा एक जैसा रहेगा। आप इसको घसेंगे ना, इसका कोटिंग चला जाएगा, कोटिंग चला जाएगा, शेनिंग चला जाएगा। अभी आप रियल पल्स देखेंगे ना, रियल पल्स इंसान की शक्ल की तरह पूरा अलग अलग रहता है, एक जैसा नहीं रहेगा। कोई ओवल शेप, कोई पोटैटो शेप रहेगा। आप इसको 0 पॉइंट तक भी घसेंगे ना, सिर्फ कैल्शियम पाउडर ही निकलेगा, सिर्फ कैल्शियम पाउडर निकलेगा। क्लीन करो, क्लीन हो जाएगा। रियल पल्स जो है ना ऑनियन के जैसा रहेगा, अंदर तक सेम रहेगा पूरा। और ये मदर ऑफ पल्स है, देखिए इसी में से पल पैदा होता है। जब पल निकलता है ना, जेली फॉर्म में होता है पल, अंदर एक कीड़ा रहता है, उसको पुश करने से पल निकलेगा। अभी तो ये सूख गया है, अब इसको भी घसेंगे ना, सिर्फ कैल्शियम पाउडर ही निकलेगा, सिर्फ पाउडर ही निकलेगा। और एक रियल पल्स को जो है ना जला के भी बताते, रियल पल्स को आप जलता हुआ आंच में भी डाल देंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। रियल पल्स को जलता हुआ मोती में भी डाल देंगे ना, अभी वो प्लास्टिक वाला जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ये इसका पूरा आपको IUS रजिस्टर गारंटी कार्ड सर्टिफिकेट के साथ आता पूरा आपको। इसमें अलग अलग शेड्स आएंगे, शेप्स आएंगे, कोई ओवल शेप आएगा, कोई पोटैटो शेप आएगा, ये भी नेचुरल कलर ही रहेगा। ये ओवल से ये बनने के लिए कितना टाइम लगता है? अभी ये जो है ना, अभी इसका फॉर्मिंग हो रहा है, फ्रेश वाटर पल्स का फॉर्मिंग हो रहा है। पहले जो है ना समंदर से आता था मोती, वो खाली निज़ाम जो थे बादशाह उन लोग ही पहनते थे। अभी जो है ना फ्रेश वाटर पल्स आ रहा। पहले मुर्गी का अंडा अपने को खाना रहा तो घर में मुर्गी को पाल के खाते थे अपन। अभी जैसा एग फॉर्मिंग हो रहा है ना, वैसे ही सेम पल्स का भी फॉर्मिंग हो रहा है। सेम ये आपको गवर्नमेंट शेल देगी, अगर आपके छत पे जगह है तो आप फॉर्मिंग कर ले सकते हैं। इसके अंदर एक कीड़ा रहेगा, पहले एक ही मोती निकालता था वो, अभी उसका सर्जरी करके जो है ना एक ही कीड़े से 3-4 मोती निकाल रहे हैं। अब ये जब निकलेगा ना तो जेली फॉर्म में रहेगा मोती, तो मोती निकाल के उसको ऐसा अनशेप में रहेगा मोती, उसको होलिंग करते हैं, ड्रेडिंग करते हैं और उसको फिनिशिंग करते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत शेनिंग लाते हैं उसके अंदर, ऐसा जो है ना शेनिंग लाते इसके अंदर। ये वाला डायरेक्ट है, देखिए इसको खाली शेनिंग किया है, बफिंग किया है इसको, ये डायरेक्ट है एकदम। ये इंडिया में मिलता है कि बाहर से भी आता है? ये सब अलग अलग जगह से आता है, जहाँ पे पानी की ज़्यादा सहूलत है ना वहाँ पे अलग अलग जगह से आता है पूरा। अभी फार्मिंग कहाँ पे हो रहा है इसका? फार्मिंग जैसे कि अभी महाराष्ट्र साइड, दिल्ली साइड, ऐसा पानी जहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे होता है, पॉट एरियाज में होता है। अभी जो बताया आप, ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है पूरा ये शेल में से निकल ये के? कम से कम 3-4 दिन में एक मोती रेडी हो जाता है। अच्छा, वो अभी ये तो हम लोग का थोड़े ही हैं, वहाँ पे जब फार्मिंग होती ना वहाँ हज़ारों रहते, एक साथ निकलते जाता, एक साथ ड्रिलिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए जाते जाते। अभी जो आपके जो मोतियाँ हैं समंदर के, ये फार्मिंग के? नहीं, फ्रेश वाटर पल्स है। आप पूरा चार मीनार में जितने भी मार्केट है ना पूरा फ्रेश वाटर पल्स ही है। अगर आपको सी वाटर पल्स देखना है तो वो भी है अपने पास, वो भी बता। सी वाटर को हमारा अभी एक शॉप पे ठीक है, मिल जाएगा आपको। सी वाटर पल्स भी चाहिए तो मिल जाएगा, और नेचुरल खारे पानी का मोती रहेगा, ये मीठे पानी का मोती। కాలం ఎంతగా అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ ప్రజల అభిరుచి మాత్రం మారలేదు. నిజాం కాలం నాటి ముత్యాల ఆదరణకు ఇప్పటికీ కొదవలేదు. ఇప్పటికీ జనం కేవలం దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మాత్రమే కాకుండా విదేశాల నుంచి సైతం ఇక్కడికి వచ్చి ముత్యాల కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముత్యాల కొనుగోలుపై ఇక్కడ ఉన్న ప్రత్యేక మార్కెట్, ముత్యాల మార్కెట్కి ఎంతో ఆదరణ ఉంది. ఇక్కడి వ్యాపారులు కూడా అదే సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిత్యం కొన్ని వేల మంది వచ్చి ఇక్కడ ముత్యాల కొనుగోలు చేస్తున్నారని వారు చెబుతున్నారు. కెమెరామెన్ రాముతో కదీర్, సాక్షి డిజిటల్ ఎక్స్క్లూజివ్, హైదరాబాద్. చూశారు కదా, మరింకెందుకు ఆలస్యం, హైదరాబాద్ చార్మినార్లో ముత్యాల షాపింగ్కు సిద్ధమవ్వండి.